Good morning, students. So today we are going to start with definition of statistics in singular sense. As I already told you, in singular sense, statistics means science of statistical methods, right? In plural sense, we define statistics as quantitative information. Now, this quantitative information has to be procured, it has to be collected, it has to be classified. So various methods which are required to obtain that quantitative information is also the science of statistics. So there are many definitions of statistics given by different statisticians. Here I am referring to one definition by a statistician, Seligman. According to him, statistics is the science which deals with the methods of collecting, classifying, presenting, comparing, and interpreting the numerical data. That numerical data which has been collected to throw some light on any sphere of inquiry. It means all these steps which we are undergoing, that is collection of data, classification of data, then we may also present the data, compare and interpret it. All these stages are undergone because we want to throw some light on any sphere of inquiry. It simply means we want to obtain information, we want to know about some subject, some sphere of inquiry. That sphere of inquiry could be anything, it could be related to politics, it could be related to sports, it could be related to pandemic which we are facing these days. So daily you are reading news that these many cases have turned out to be positive, these many fatalities have occurred. So India is at number 3. In India, Bangalore is number 1 in case of in with reference to number of cases. So all this information we have collected, we have classified it. Presentation you also must have seen in the form of pie diagrams or graph, and this is also compared and interpreted. ठीक है, जब हम कहते हैं कि सारी स्टेट्स में से या सिटीज में से बैंगलोर में नंबर 1 केसेस हैं, महाराष्ट्र मोस्ट सफर्ड स्टेट है, या यूएस सबसे ज़्यादा सफर्ड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, वी आर इंटरप्रेटिंग द डाटा. ठीक है, ऑल दिस डाटा, ऑल दीज स्टेप्स वी हैव अंडरटेकन टू थ्रो सम लाइट. टू थ्रो सम लाइट का मतलब यही होता है बेटे, टू नो अबाउट, to have a deep information about any sphere of inquiry, right? So going by this definition, statistics involves collection, classification, presentation, comparing and interpreting the data. So all these are the stages of statistical study, right? So first stage is collection of data. जब भी हम स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं, तो वी हैव टू कलेक्ट द डाटा. देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ कलेक्टिंग द डाटा. We have our 2 chapters attributed just to collection of data, right? We can obtain primary data, we can obtain secondary data, or we can make use of census method of collecting data, or even we can collect the data using sample study, right? After that, beta, you have to organize the data. Raw data as such is of no use. It has to be organized in a systematic manner. Just like at your home, when your clothes are washed, ironed, then you keep them at different places. You know, you have one place for keeping towels, another place for keeping shirts, another for keeping your trousers, still another for keeping your ties and belt. Similarly, when we collect the data,
we organize it, we classify it according to a systematic manner. ठीक है? So again, we have one whole chapter attributed to organization of data. After that, bete, next stage of statistical study is presentation of data. Data can be presented in the form of graph, in the form of diagrams. You already have done diagram, bar diagrams, right? Pie diagrams. So data can be presented through any of these techniques. It can be presented with the help of tables, with the help of graphs, or with the help of diagram. So what's the purpose behind presentation of data? The purpose is just to, leave some lasting impression on the mind of the reader. Again, we have 3 chapters attributed to presentation of data. नेक्स्ट कम्स बेटे एनालिसिस ऑफ डाटा. डाटा की एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी होती है. डाटा की डीप स्टडी, एनालिसिस का मतलब है डाटा को डीपली स्टडी करना. ठीक है, इसकी कुछ टेक्निक्स आपने 10th में भी की हुई है, जैसे कि एवरेजेस, मीन, मीडियन एंड मोड. ठीक है, उस टाइम पे आपको सिर्फ हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड ये बताया जाता है. लेकिन यहाँ पर हम सारा करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड. हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका पर्पस क्या है. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू हैव अ डीप स्टडी देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स. एनालिसिस ऑफ डाटा का मतलब यही है बेटे, उसकी डीप स्टडी करना. सो वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा. Now in your syllabus you have 4 techniques of analysis of data, that is averages, mean, median, mode, measures of dispersion, correlation and index numbers. ठीक है, तो ये चारों हम करेंगे. and thereafter when we have analyzed the data, it's a time to interpret the data. How the data is interpreted? Interpretation का मतलब क्या होता है? Interpretation का मतलब है to draw out conclusions. ठीक है, to draw conclusions. तो जब तक बेटे डाटा को एनालाइज कर दिया, उसमें से कोई कंक्लूजन ही नहीं ड्रॉ की, जैसे पूरे हमने लेट्स से जनवरी से लेके अप्रैल तक कितने एवरेज पॉजिटिव केसेस आए हैं और कितनी डेथ्स हुई हैं ड्यू टू कोविड-19, ये अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया, हर कंट्री की एवरेज डेथ फाइंड आउट कर ली और उसके बाद उसको इंटरप्रेट नहीं किया तो क्या फायदा. ठीक है, उससे उसी के बेसिस पर हम फिर ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि यूएसए नंबर 1 पे आ रही है, ब्राजील नंबर 2 पे है और इंडिया नंबर 3 पे है. ठीक है, सो टू ड्रॉ कंक्लूजन मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ data. ठीक है, these are the various stages of statistical study and this is how we define statistics in singular sense in terms of various statistical methods, right? All right, so statistical stages we have studied. There are different stages of statistical study, that is collection of data, organization of data, presentation, analysis and interpretation of numerical data. तो बेटे हर स्टेज जो है स्टैटिस्टिकल स्टडी की, it involves the use of certain methods, certain techniques. ठीक है, हर स्टेज को, जैसे कि कलेक्शन ही है, डाटा को कलेक्ट करने के लिए कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है, या मेथड्स एंड टेक्निक्स ही वर्ड यूज करते हैं. वी नीड सर्टन मेथड्स टू कलेक्ट द डाटा. सिमिलरली देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा. सो these statistical techniques or methods which are used in different stages of statistical study is referred to as statistical tools, right? tools क्या होते हैं बेटे? tools वो चीजें होती हैं जो हमारे काम को आसान करती हैं.
तो यहाँ पर हमारी डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसके बेसिस पर हमें कोई एक न्यूमेरिकल डाटा, एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आएगी। उन स्टेजेस के लिए जो भी टेक्निक्स या मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, that is referred to as statistical tools, right? So let us see what are the different techniques used for collection of data. We can make use of census or sample technique for collecting the data. What are these techniques? We will be discussing it at length in future, right? So for now, you just see the different techniques of collection of data. Census, that is we can study each and every unit of the population. Sample, that is we take out a few units out of the population and draw conclusion about whole of the population on the basis of that. Next stage है हमारी organization of data. Now, how can data be organized? Again, there are different techniques, right? हमारा जो data है उसको हम arrange कर सकते हैं, say in ascending order or in descending order. That is array of data. Array means arrangement. ठीक है? So whenever we arrange the data in say ascending order or descending order, मैंने आप बच्चों से आपके 10th के प्री बोर्ड के मार्क्स मंगवाए, फिर मैंने उनको अरेंज कर दिया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में. दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. एंड इफ यू नो नंबर ऑफ डाटा, जो डाटा है वो ज्यादा है, नंबर ऑफ वैल्यूज आर मोर, तो उस केस में हम उसको इस तरह से अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में. इट विल बी ऑफ नो यूज. ठीक है? तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, आपके अलमीरा में आपको क्लॉथ रखने हैं, तो आप क्या करोगे? अगर तो आपके पास 4 शर्ट हैं तो एक के ऊपर एक शर्ट आप रख दोगे. लेकिन अगर आपके पास लेट्स से 30 शर्टें हैं, हाउ विल यू कीप देम? यू विल कीप देम इन डिफरेंट पाइल्स. ठीक है? सिमिलरली बेटे, अगर डाटा ज्यादा है हमारे पास तो हम उसको किसी और तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, टेली बार से. ये भी आपने 9th 10th में किया होता है, फ्रीक्वेंसी सीरीज जब आप बनाते हैं. बट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस curriculum also, right? Next statistical study, stage of statistical study is presentation. So data can be presented in the form of tables, in the form of graphs like histogram, ogives, right? Frequency polygon, frequency curve, or in the form of diagrams like bar diagram or pie diagrams. After this, you need next stage of statistical study is analysis of data. Analysis means deep study of data. So how can data be analyzed? We can make different techniques. One is measures of central tendency, measures of dispersion, correlation, index number, or even percentages help us to know the data in detail, right? Next है बेटे interpretation of data. Interpretation means to draw conclusion. All these stages have been undergone in order to interpret the data, in order to draw conclusion. ठीक है? डाटा कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, एनालिसिस कर दिया, तो उसमें से इंटरप्रिटेशन ही नहीं ड्रॉ की, तो ऑल दीज स्टेजेस आर यूजलेस. All these stages are undergone to interpret the न्यूमेरिकल डाटा. जस्ट लाइक अगर आपको फीवर हो रहा है तो डॉक्टर आपके डिजीज को डायग्नोज करने के लिए आपको कहता है अच्छा अपना फीवर मॉनिटर करो. ठीक है? आप सुबह 11 बजे अपना टेम्परेचर देखो कितना होता है, शाम को 5 बजे देखो, रात को 10 बजे देखो, और भी आपके सिम्टम्स वो नोट डाउन करता है. व्हाई इज ही इज कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग योर डाटा इन ऑर्डर टू डायग्नोज योर डिजीज. तो अगर ये सब करने के बावजूद भी डॉक्टर आपका डायग्नोस नहीं करता है, ठीक है, तो इन सारे स्टेप्स का कोई फायदा नहीं है. सो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, इंटरप्रिटेशन. हाउ वी इंटरप्रेट द डाटा? वी कैन मेक यूज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेजेस. मैग्नीट्यूड मीन्स साइज, परसेंटेज. जैसे अब हमारे पास 2 स्टेट्स का डाटा है, तो अगर पंजाब में फर्टिलिटी रेट 20% है
हरियाणा में 15% है। सो हम इन दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करके बता सकते हैं कहाँ पे सिचुएशन ज्यादा सीरियस है। ठीक है, इसी तरह एवरेजेस को देखकर भी हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। So till now, bete, we have studied about the definition of statistics in both singular as well as plural sense. No doubt, statistics is an indispensable science. It is used everywhere in every field, but it suffers from certain limitations also. Despite being an important science, there are certain limitations, there are certain drawbacks, there are certain shortcomings of this science. First is that it studies only numerical facts. जो statistics है, it is the study of numerical facts only. ठीक है, सिर्फ क्वांटिटेटिव फिनोमिना को हम स्टैटिस्टिक्स मानते हैं, जैसे कि मार्क्स, वेट, प्रोडक्शन, प्राइसेस, ठीक है, जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं उसको ही स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। नाउ बेटे, देयर आर क्वालिटेटिव फिनोमिना आल्सो व्हिच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, लाइक ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, इंटेलिजेंस, ठीक है, हेल्थ, ये सारे क्वालिटेटिव फिनोमिना हैं, इनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के परव्यू में ये नहीं आते हैं। सो दिस इज वन लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना, राइट। सेकेंडली बेटे, इट इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ये आपने कर ही लिया इसका फीचर। आपको पता है कि सिर्फ एग्रीगेटिव फैक्ट्स को, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को ही हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, एक सिंगल फैक्ट को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते। सो इसी बेसिस पर स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन हमने की है कि इवन दो सिंगल फैक्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि आज पंजाब में नंबर ऑफ डेथ्स इतनी हुई है, तो दैट ऑल्सो सिग्निफाइज समथिंग, दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स सिंगल फैक्ट को स्टडी नहीं करता है। थर्ड बेटे, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। जो स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स होती हैं बेटे, दे आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो वो सिर्फ टेंडेंसीज बताती हैं, वो ऐसा नहीं है जैसे फिजिकल साइंसेस होती हैं उसमें आपको बताया जाता है, वो एग्जैक्ट साइंसेस होती हैं, एरर फ्री होती हैं। ठीक है, उनमें बताया गया कि इतने परसेंट आपने, जैसे आपने इक्वेशंस की है, इतने परसेंट आपने ये वाला एसिड डाला तो ये वाली गैस बनेगी। ठीक है, वो 100% एक्यूरेट होती हैं। लेकिन जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स हैं, दे आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। जैसे अब आपको एक एग्जांपल दी जाए कि इंडिया में लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, इट इज से ₹50,000 पर मंथ, या मैं बोलूं आपकी क्लास के एवरेज मार्क्स जो आए दैट इज 75। डज दिस मीन एवरी स्टूडेंट मार्क्स इज 75? नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेटे जिनके 90 से अबव मार्क्स हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 10, 12, 13 इतने मार्क्स हैं, है ना। इसी तरह अगर हमने कहा कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम 50,000 रुपीज पर मंथ है, सो दैट डज दैट मीन कि हर पर्सन की इनकम 50,000 रुपए है? नो, इट इज ओनली एन एवरेज फिगर। देयर माइट बी अ पुअर पर्सन अर्निंग ओनली 50 rupees in a day, or say 500 rupees in a month, and at the same time there might be a person whose income per monthly income is say 5 lakh rupees. तो statistical results जो हैं they are true only on an average. ठीक है, लास्ट बेटे, जो statistical results होते हैं they may be proved wrong without reference. स्टैटिस्टिक्स जो है एक ऐसी साइंस है जिसको हम बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए वी कैन मैनिपुलेट इट। ठीक है,
तो फॉर एग्जाम्पल दो बिजनेस हैं ए और बी। आपका जो बिजनेस ए बिजनेस है उसमें पहले साल 1 लाख सेल थी, दूसरे साल 2 लाख, तीसरे साल 3 लाख। तो आपकी जो एवरेज सेल है वो कितनी हो गई? 2 लाख। सिमिलरली आपका जो बी बिजनेस है उसमें पहले साल 3 लाख थी सेल, फिर 2 लाख हो गई, फिर 1 लाख हो गई। अगर आप इसकी भी एवरेज सेल निकालोगे तो 2 lakhs है। नाउ यू वांट टू सेल ऑफ बोथ दी बिजनेस। तो अगर आप सिर्फ कोई बायर आ रहा है तो आप कह रहे देख लो दोनों बिजनेस एक जैसी हैं, दोनों की एवरेज सेम है, ठीक है। यू आर मिसलीडिंग हिम बिकॉज यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी रेफरेंस। यहाँ पे सेल डिक्लाइन हो रही है, यहाँ पे सेल बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ बेटर बिजनेस, ठीक है। एंड दिस बिजनेस इज गोइंग डाउन, राइट। नाउ वी आर कॉलिंग इट अ डे बेटे। नेक्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है।